Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know, on Saturday we have completed our chapter 4th. Okay. I think we have completed types of noun. So let us move forward to our next chapter, nouns gender. As you can see the heading, nouns gender. So first we talk about the nouns. So everybody knows what is noun. Naming words are known as nouns. Before it, as we all know, types of noun, common noun, proper noun. There were 4 types of, कितने थे? There were 4 types of noun. Common noun, proper noun, collective noun, and fourth one is abstract noun. Now in the same way we learn about the gender of noun. Gender means क्या मेल है, क्या फीमेल है, क्या दोनों कॉमन है और क्या न्यूटर है. सो let us start our topic, nouns gender. So first you see what is given here. We know that nouns can be divided into masculine or feminine gender. As usual we can say that nouns are divided only in 2 parts. First is masculine gender, second one is feminine gender. Feminine reserved to the female candidates and masculine refer to the मेल कैंडिडेट. ओके, जो मेल यानी कि जो पुरुष होते हैं, जो आदमी होते हैं या जो लड़के होते हैं, वो सब किस में आते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं. जो औरतें होती हैं या लड़कियां होती हैं, ठीक है, दैट मीन्स फीमेल जो कैंडिडेट्स होती है, दे ऑल कम इन फेमिनिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट मेल्स and feminine gender represent females. As I have already told you, masculine gender means male and feminine gender means female. As you can see the example here, prince. Prince is a masculine gender because it represents male, and princess is a feminine gender because it represents female, it's male. So it's a masculine gender, it's a feminine gender. And you can say opposite भी आप इसको कह सकते हो. जो जेंडर होते हैं they all are opposite to each other. वो एक दूसरे के क्या होते हैं? genders are opposite to each other. वो एक दूसरे के opposite भी होते हैं. Then boy, as you can see, boy opposite. What is the opposite of boy? Girl. Or you can say the contrast gender of the boy is girl, and boy is a male person and girl female. So boy is masculine gender and girl is feminine gender. Now let us see lion, lioness. Lion is masculine gender and lioness is feminine gender because lion represents male and lioness represents female. हॉर्स मेयर यानी कि घोड़ा का घोड़ी. सो हॉर्स इज़ अ मेल जेंडर, सो इट इज़ मैस्कुलिन जेंडर एंड मेयर feminine gender because it represents female. Okay, however there are 2 more categories of gender. As you can see 2 categories here. Now there are 2 more categories, are common and neuter gender. Let us see what are common and neuter gender. So some nouns can be used to refer to both men and women. There are so many nouns that can refer for the both मेल एंड फीमेल. जो मेल और फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं, दैट आर नोन एज कॉमन जेंडर. दे बिलोंग टू कॉमन जेंडर. सपोज फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एग्जाम्पल. सपोज आई हैव टोल्ड यू yesterday I met a doctor and I told each and everything. So now you tell me to whom what you're talking about. I am talking about a lady doctor or gents doctor. I said yesterday I met a doctor and I told each and everything to the doctor. Now you recognize to whom I am talking about. मेरा कहने का मतलब है कल मैं एक डॉक्टर से मिली और मैंने डॉक्टर को सारा अपने बारे में सब कुछ बताया. सो आप बताइए मैं लेडी डॉक्टर से मिली या जेंट्स डॉक्टर से मिली? ओके, सो कुछ कह रहे हो लेडी, कुछ कहोगे जेंट्स डॉक्टर. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये मैंने अपने टीचर से पढ़ा था जो मुझे आज भी याद है. ओके, आई हैव लर्न दिस थिंग फ्रॉम माई टीचर, दैट्स वाई आई नो टूडे ईच एंड एवरीथिंग. नाउ टेल मी, वो मुझे सर ने पढ़ाया था या मैडम ने पढ़ाया था? मैंने कहा मैंने अपने टीचर से
ये चीज़ पढ़ा था जो मुझे आज भी याद है। अब आप बताइए मैंने अपने सर से पढ़ा था या मैडम से पढ़ा था? विल यू रिकॉग्नाइज? क्या आप पहचान पाएंगे? नो, यू विल नॉट रिकॉग्नाइज। दैट मीन्स where we are unable to recognize that to whom we are talking about, that are known as common noun। जिनको हम बता नहीं सकें कि ये मेल होंगे या फीमेल होंगे, ये लेडीज़ होंगे या जेंट्स होंगे, तो वो क्या होते हैं? वो हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं। तो दीज आर कॉमन नाउन्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, नाउ डाउट इज क्लियर ना, देयर इज नो डाउट इन नाउन जेंडर, कोई डाउट नहीं होगा। सपोज स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मैंने कहा वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती, टीचर लेडी भी हो सकती, जेंट्स भी हो सकती, पेरेंट मम्मी पापा में से कोई भी हो सकता है। मैंने कहा मेरे पेरेंट कल आएंगे, अब पेरेंट में कौन आएगा? मम्मी आएंगी कि पापा? ठीक है, सो नहीं पता है ना कि वो लेडीज़ आएंगे कि जेंट्स आएंगे, इसलिए पेरेंट भी कॉमन जेंडर। सेम डॉक्टर का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। ड्राइवर, अब ड्राइवर कौन है? लेडी होगी या जेंट्स होगा? कज़िन, अब मैंने अपने कज़िन की, अब कज़िन सिस्टर है, कज़िन ब्रदर, जब तक आगे नहीं लगाएंगे नहीं पता चलेगा। देन सिबलिंग्स, सिबलिंग होता है जो स्कूल में आपके भाई बहन और आपके सिवा होते हैं, तो अब वो भाई है कि बहन है नहीं पता। चाइल्ड, बच्चा, हमने कह दिया बच्चा, बच्चा गर्ल है बॉय नहीं पता। फ्रेंड, अब मेरी फ्रेंड गर्ल है या बॉय मुझे नहीं पता। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन। सो दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वी विल मूव टू द न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, सम नाउन्स आर सिंपली ऑब्जेक्ट्स नाइदर मेल और फीमेल। कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज द न्यूटर जेंडर। ओके, जिनमें जान नहीं हो, नॉन लिविंग हो। ठीक है, और सिंपली हम कह सकते कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, ना तो वो मेल होगा ना फीमेल होगा, वो क्या होगा? न्यूटर जेंडर होगा। नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज न्यूटर जेंडर। सो फॉर एग्जांपल वी कैन सी टेबल, चेयर, बॉल, room, these all are non-living things, so these all come in neuter gender. Computer, tree, plants, flowers, fruits, these all are neuter gender क्योंकि इनमें जान नहीं होती है। So here you can see all types of gender. Okay, so there is any confusion in genders? No confusion. Let us see to the here you have seen the book explanation. Now we will move forward to our notebook explanation. Okay, so first you all mention the today's date in your notebook and then write the thought. There are 4 types of gender: inverted comma start, full stop, inverted comma close. Now write chapter 5 nouns gender and again write the next heading nouns gender. Here I will describe you what is noun gender. There I have told you the types of gender. Now I will tell you what is gender. So we find around us living being of different listen class. पहले आपने थॉट लिखा, देन चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर एंड देन हेडिंग। ये डिफरेंट हेडिंग है, ये आप डालेंगे चैप्टर नेम और ये हेडिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। सो लेट अस सी, वी फाइंड अराउंड अस लिविंग बींग्स ऑफ डिफरेंट सेक्स। हम अपने चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट सेक्स के लोग देखते हैं। कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, कोई कॉमन होता है। सम आर मेल और सम आर फीमेल, कुछ मेल होते हैं कुछ फीमेल। दिस डिफरेंस ऑफ सेक्स इन लिविंग बींग्स इज कॉल्ड जेंडर। और लिविंग बींग के बीच जो ये सेक्स का डिफरेंस होता है, कौन मेल है कौन फीमेल, दिस इज़ नोन एज द जेंडर। इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड जेंडर, इसी को हम जेंडर कहते हैं। सो फर्स्ट यू राइट दिस, आप पहले ये लिखेंगे, देन राइट द नेक्स्ट हेडिंग। So look at the following males and females, and first heading you all will write, I will give some example of male and female, and here female. Son, son is a male gender, okay, daughter female, ये इसका अपोजिट भी होता है और ये इसका फीमेल भी होता है। ब्रदर, सिस्टर, ही गोट यानी कि बकरा, शी गोट यानी कि बकरी। सो आफ्टर राइटिंग दिस you all will write this heading and these 2 heading and then write these 3, okay. Next, nouns can be divided into 4 gender. Okay, how many types of noun gender? 4. So first you make this structure and make 4 arrow and then line masculine gender, feminine gender, common gender, neuter gender. So male, now you all will write masculine gender. Write in short, male nouns are masculine gender, then female nouns are feminine gender. That I have already explained you. Male noun are masculine gender, female nouns are feminine gender.
कॉमन जेंडर, आइदर मेल एंड फीमेल आर कॉमन जेंडर, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा. इफ़ वी हैव कन्फ्यूजन दैट whoever is it's male or female, so we use common gender. And after that, animals, plants and non-living things are neuter gender. And after that, paste a picture. This is not compulsory to paste the same picture. Whatever you have you will paste. सिर्फ यहाँ पे मैस्कुलिन आप पेस्ट करेंगे, आपके पास बॉय ना हो तो आप मैन यूज़ कर सकते हैं, अदर जो आपके पास मैस्कुलिन में आपको मिल जाए तो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे. देन यहाँ पे फेमिनिन जेंडर पेस्ट करेंगे. देन कॉमन जेंडर यहाँ पे टीचर मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, पायलट मिल जाए, जो भी स्टूडेंट मिल जाए, जो भी मिल जाए कॉमन जेंडर. एंड न्यूटर में कोई भी नॉन लिविंग थिंग, बॉक्स हो सकता है, बैग हो सकता है. एंड इफ़ यू वांट टू ड्रॉ देन ड्रॉ, इफ़ यू वांट टू पेस्ट यू पेस्ट, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ यू ड्रॉ, वट एवर इट्स योर चॉइस. ओके, ये आपकी मर्जी, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं, वट एवर इज़ ईजी फॉर यू. हाँ, one important question that Anurag has asked me, and I forgot what he actually I was unable to understand what he was asking. अनुराग ने मुझसे पूछा कि मैम ये पेन से लिखना है, मुझे लगा वो ये इसकी बात कर रहा है, ये जो मैंने हेडिंग्स डाली हैं या ये जो मैंने अंडरलाइंस आपको सारी ब्लैक स्केच से करनी होती हैं, जो हेडिंग के नीचे अंडरलाइन होती है. लेकिन आप इनको जो मैंने कलरफुल किया है, जैसे ये कलर से किया, ये कलर से किया, आप इनको कलरफुल कर सकते हो. बट उसने मुझसे पूछा था क्या ये हम पेन यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पे पेन नहीं पेंसिल यूज़ करनी है. एक्चुअली ये मैंने एक शीट में बनाया है, दैट्स वाई आई हैव रिटन विथ पेन, इसलिए मैंने यहाँ पेन यूज़ किया. आप ये जितना पेन से लिखा हुआ है सब आप पेंसिल से लिखेंगे, सिर्फ आप ये हेडिंग डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं कलर, ठीक है. बाकी आपको सारा पेन से ही पेंसिल से लिखना है. उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने बोल तो दिया था नहीं स्केच कलर यूज़ करना, तो स्केच कलर सिर्फ आपको जैसे कि मैंने जहाँ जहाँ यूज़ किया बस वैसे ही यूज़ करना है. बाकी हेडिंग्स के नीचे जो अंडरलाइन होगी वो ब्लैक से होंगी, तो पेन किसी को नहीं यूज़ करना है, ठीक है. और ये बिल्कुल यूज़लेस क्वेश्चन था. अगर टीचर अपना, मैं रेड पेन से चेक करती हूँ तो क्या आप रेड पेन से अपना वर्क करेंगे? मैंने नोट्स बनाए हैं पेन से, ठीक है. वैसे मैं आपको पेंसिल से बना के देती हूँ, पर मैं अगर पेन से भी बनाऊँ, मुझे पेन से ही बनाने चाहिए, बट मैं पेंसिल से इसलिए देती हूँ कि आपको और क्लियर हो जाए. दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ एनी कन्फ्यूजन, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन राइट इन कमेंट बॉक्स. So that is enough for today. Tomorrow I will continue the next portion of this chapter. So thank you for today. Thank you and have a nice day.